It is even first time in my last 15-16 years. I have been teaching from the last 15 years, and it is first time, and that in online system completely I have completed first book. We have completed, and you have also completed the first book. Actually, our last on electromagnetic wave chapter we completed, and so students, sometimes the situations occurs, and we have to survive with the situations. We have to go with the situations. हाँ? वर्षा पोसवाल is showing clapping. अरे इसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं है. मैं तो जैसे ऐसे ही मेरे मन में बात आई जो मैंने आपसे शेयर की कि इन दिस ऑनलाइन सिस्टम वी कंप्लीटेड वन बुक, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं एक चैप्टर भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, फिर सेकंड चैप्टर भी होगा कैसे होगा. वीडियो पहले आपको हम स्ट्रीमिंग करके भेजते थे, फिर यूट्यूब लाइव चला, फिर यूट्यूब लाइव के बाद गूगल मीट आया. सो मेनी प्रोग्रेसेस. और एक टाइम वो भी था जब अप्रैल में, आप मेरे स्टार्टिंग वीडियो आप देखेंगे जब अप्रैल में एकदम लॉकडाउन चल रहा था, तो आप में से कई बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग वीडियो देखे होंगे जिसमें मेरा घर नजर आ रहा होगा आपको एकदम, मतलब बड़ा बड़ा ही, मतलब जो उसका वीडियो का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया. मैंने स्टार्टिंग के इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर आपको भेजे थे ना मेरे यूट्यूब चैनल से, कुछ मैंने वीडियोज आपको भेजे थे, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ, ये सब मैंने. और मुझे अभी भी याद है कि हमने एक लाइव क्लास भी ली थी जूम ऐप पर, ठीक है ना, जिसमें हमने कूलम्ब लॉ पढ़ाया था आप लोगों को. जिन बच्चों ने ज्वाइन किया होगा उनको याद होगा डेफिनेटली. तो उस दौर से हम गुजरे के आज हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं कि नाउ वी आर मीटिंग एट गूगल मीट रेगुलरली, एंड it is giving the feeling of actual class like that, and you are now become habitual of this system. So it is very good thing, students. Actually it shows our positivity that with adverse situations, with the non-favorable situations, we can survive. It shows our determination towards our goals, and it shows a determination towards our attitude that in this situation where whole the education system is being struggling, students are also struggling. Some students are not comfortable with online system, online teaching. They are not understanding what the teacher is teaching. Sometimes the network issues are there. There are so many remote areas are there where no internet is there still in today's date. They are struggling, and in this situation, as compared to others, now we can say that we are in a better place, definitely. Okay, and at the same time we have conducted the test also, we have given homework also, Google Classroom system we have introduced. So many things we have introduced, and with this we have achieved lot of things, and this is definitely a memorable things. Definitely after the going this era, this bad era, we pray that this era should be finished, this era should be vacated, this era should be finished as soon as possible. This bad era, this time of pandemic should finish as much as possible, as soon as possible. But these things are memorable even after 5 years. If we will recall, then definitely you will also remember, and I will remember these days. Now it means these days that we are now living with in this system, that definitely these days are lifetime remembrance in our mind. Now we cannot forget these days, and I think you agree with my thoughts. Okay, आपको भी जो है इस बात से डेफिनेटली एग्री होंगे कि अब ये जो टाइम हम बिता रहे हैं, ये सिस्टम में हम जो पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके परमानेंटली मेमोरी में चली गई होगी. आज से कई साल बाद भी जब याद करेंगे तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि ऐसा भी एक दौर आया था, ऐसा भी एक तरीका है, हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन सिस्टम में हम एक सर्वाइव किए थे हमने. तो डेफिनेटली इसी के साथ नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, स्टूडेंट्स. Actually these were my feelings, so that's I shared with you all, because actually we have completed the first book. That's why these feelings came in my mind कि हमने देखो बातों ही बातों में ऑनलाइन करते करते किताब कंप्लीट कर दी है. और नाउ सेकंड बुक इज देयर. सेकंड बुक में भी हमने रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर आपको याद होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग मॉड्यूल है वो आए थे, तो हमारे रे ऑप्टिक्स से ही कंटेंट चालू हुआ था. तो हमने उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा रोक कर रे ऑप्टिक्स चालू किया था, जिसके हमने आपको यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो भेजे थे. उस टाइम लाइव क्लास हम नहीं लेते थे,
रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोग आपको बाद में लाइव क्लास लेना चालू की थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम क्या करते थे, वीडियो ही आपको सेंड करते थे बनाकर, इफ यू रिमेम्बर। फिर हमने धीरे धीरे लाइव क्लास लेना चालू किया। तो हो सकता है कि यू रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कभी लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा यू कैन से कि कमजोर पड़ गया होगा कई लोगों के माइंड में, या कई लोगों को सोच रहे भाई ये तो और पढ़ ले। तो डेफिनेटली वी विल रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, हम इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे रे ऑप्टिक्स को, इसमें कोई शक नहीं है। बट बिफोर दैट आई फील दैट कि वी शुड कंप्लीट दैट दो चैप्टर दैट वी हैव नॉट टच्ड सो फार। एक्चुअली रे ऑप्टिक्स को हमने एटलीस्ट एक बार टच तो कर ही लिया है, और इसके वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, रखे हैं, और ऑलरेडी इसका एक टेस्ट भी हम कंडक्ट करा चुके हैं। तो इसका मतलब 100% नहीं सही, लेकिन कुछ 50-60% ये चैप्टर आपको आता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अभी इस चैप्टर को रिवाइज करने की बजाय हमारा फोकस है कि जो बाकी के चैप्टर जिनको अभी तक हमने टच नहीं किया है उसको हम लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट एक्चुअली सीक्वेंस वाइज हम बात करें तो सीक्वेंस वाइज रे ऑप्टिक्स के बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। बट जो वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, वो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, 12, 13। चैप्टर नंबर 11 हम लेंगे ड्यूअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स के हम 3 चैप्टर लेके चलेंगे स्टूडेंट पहले। एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये है कि वेव ऑप्टिक्स का अभी तक ई कंटेंट भी नहीं आया है, वी आर वेटिंग द ई कंटेंट। एक्चुअली हालांकि मेरे नोट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि ई कंटेंट उसका आ जाए और फिर उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स चालू करें। और वेव ऑप्टिक्स थोड़ा क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा सा मैटर भी आपके पास होना चाहिए। एंड मीनवाइल यू नो दैट ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, एटम और न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 ऑफ एनसीईआरटी, इनके नोट्स, इनका स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हमारे ई कंटेंट में आ गया है। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए आप जरूर। तो डेफिनेटली इफ यू स्टार्ट दिस चैप्टर देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ द नोट्स विद यू, आपके पास नोट्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। और बाकी हम चैप्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आपको उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो ये बातों, और दूसरा ये कि 3 चैप्टर थोड़े क्या है कम टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि वेव ऑप्टिक्स में भी पोलराइजेशन हटा दिया गया है, तो वो भी अब ज्यादा बड़ा नहीं बचा है, लेकिन these 3 chapter we can complete in the shorter time, मतलब you know within coming 20 days we can complete these 3 chapters. Chapter number 11, 12, 13, they are very small chapters, they are not as much lengthy as our first part chapter used to be, so we can complete this chapter in the coming 10-15 days at least we can take to complete these chapters, और आसपास उसके। तो उसके बाद फिर साइकोलॉजिकली हमारे पास एक इस तरह का रहेगा कि उसके बाद केवल 2 ही चैप्टर रह जाएंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड वेव ऑप्टिक्स। तो उससे हमारा सिलेबस का जो एक तरह का लोड अभी हमें लग रहा है कि अभी तो पूरी सेकंड पार्ट बचा है, उससे हमारा लोड केवल इतना आ जाएगा कि मतलब आफ्टर 15 डेज इफ यू विल थिंक देन वी विल फाइंड ओनली 2 चैप्टर्स आर रिमेनिंग। तो उससे हमें काफी रिलीफ, आपको भी काफी रिलीफ महसूस होगा। और मीनवाइल इफ बोर्ड डिसाइड्स एनी डेट फॉर एग्जाम देन यू विल बी इन रिलैक्स मोड, आप भी कंफर्टेबल कंडीशन में रहेंगे कि एटलीस्ट हमने कुछ पढ़ाई तो करी है, कुछ समझा है, हमने कोई नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, तो एटलीस्ट एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स यू विल बी इन कंफर्टेबल कंडीशन। Okay, so that's why we are starting the chapter number 11 not chapter number 10. I am starting wave optics I will take after the completing these 3 chapters, we will take the wave optics. Okay students, after completing these 3 chapters we will take the wave optics, and meanwhile there won't be any problem of the notes also for this chapter to you, ठीक है, because already e content of these 3 chapter published on your e portal, AES e portal पे हमारा ऑलरेडी इसके नोट्स, पीपीटी और हैंडआउट ये सब आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, dual nature of radiation and a photoelectric effect. So that chapter we are starting today, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसके नोट्स आप ई पोर्टल से प्रिंट आउट ले सकते हैं, और बाकी मेरे लिखवाए हुए नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, अपने साथ वाले बच्चों से, किदेश से ले सकते हैं, उसके बड़े भाई को भी हमने पढ़ाया था, आप प्रज्ञा से ले सकते हैं,
और ई कंटेंट वाले नोट्स भी आप ले सकते हैं, उनके पास डेफिनेटली लास्ट ईयर की कॉपी होगी, मेरी लिखवाई हुई है वो नोट्स। एक्चुअली इस चैप्टर के नोट्स हमने शायद दिए थे प्रिंटेड, तो मैं आपको जो मेरे नोट्स है प्रिंटेड वाले, एक तो एक कंटेंट वाला मैटर है और एक इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास। चैप्टर में 11, 12 और 13 के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी है, मतलब जो मेरे बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा इस चैप्टर के, तो दैट यू कैन आल्सो टेक। तो इसमें इसलिए चैप्टर 11, 12, 13 में आपको नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हमारा एक्चुअली दो पार्ट में है। पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये तो आपका डी ब्रोगली वाला हाइपोथेसिस है जो आपने पढ़ा था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, लैम्डा इक्वल्स टू h/p वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि ये आपके 11 के केमिस्ट्री में भी आता है ना। और सेकंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्चुअली हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेंगे और उसके बाद हम ड्यूअल नेचर इफेक्ट रेडिएशन लेंगे। इस चैप्टर में से एक टॉपिक आपका हटाया गया है, डिलीटेड किया गया है फॉर दिस ईयर, मतलब सीबीएसई ने एक टॉपिक इस चैप्टर में से हटाया है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज से नहीं स्टडी करना है फ्रॉम दिस चैप्टर, आई एम टेलिंग यू। बाकी इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, और वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली लास्ट टॉपिक है, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इन एनसीईआरटी, इट इज लास्ट टॉपिक। So that Davison and Germer experiment is deleted. Only the topic is there, and remaining all topics you have to study. That will come in your exams. तो हमारा पहला वाला टॉपिक चालू होता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो पहले अपन हमारी जो पहली 2-3 क्लासेज जो होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे होगी, और उसके बाद फिर 1-2 क्लासेस ये जो होगी, हमारी टोटल 5 क्लासेस का चैप्टर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 और 3 क्लासेस इट विल टेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रिमेनिंग 2 क्लासेस इट विल टेक। अभी डेविसन जर्मर हटा दिया तो हो सकता है कि ड्यूअल नेचर वाला हम एक क्लास में भी कंप्लीट कर देंगे, मतलब टोटल मिला के ये 4 क्लास का ही चैप्टर है। हार्ड ये मान के चलिए आप, इट इज द चैप्टर ऑफ 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लोगों ने जैसे कि सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा, फोटो सेल, ठीक है, सोलर सेल, इन सबका नाम आपने सुना होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली उन सबका एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं एक्सप्लेन होता तो डेफिनेटली आज हमारे सामने ये जितना भी सोलर पैनल आप देखते हैं, सोलर से चलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये डेफिनेटली इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आल्सो इट वाज अ रिवोल्यूशनरी आइडिया व्हिच चेंज द एंटायर फिजिक्स। इसने क्या कर दिया था, फिजिक्स को पूरा ही चेंज कर दिया था। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने के बाद ही हमारी जो फिजिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो एक्चुअली ये आपके जो 3 चैप्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब ये मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है, मॉडर्न मतलब मॉडर्न आज का है, और क्लासिकल मतलब पुराना, ऐसा नहीं, ऐसा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इस चीज का और भी कुछ और मतलब भी है। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब रिसर्च हुआ तो एक्चुअली उस टाइम पे न्यूटन लॉज आपके चलते थे, और न्यूटन के टाइम के जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन सब ने जो फिजिक्स के कंसेप्ट बताए थे, उन्होंने जो बताया उसको क्लासिकल फिजिक्स माना गया। लेकिन उसके बाद आया मिस्टर प्लैंक, और प्लैंक ने अपना एक फॉर्मूला दिया फोटोन का, E=h²। मतलब उसने क्या माना, एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों में माना कि एक छोटे छोटे पैकेट और बंडल्स में एनर्जी आपकी हम अज्यूम कर सकते हैं, और एनर्जी को एनर्जी पैकेट के रूप में माना कि दैट एनर्जी पार्टिकल के रूप में वो होता है, और उस पार्टिकल का नाम उसने दिया फोटोन। तो इट वाज कंप्लीट ये रिवोल्यूशनरी आइडिया, क्योंकि इसके पहले लाइट को क्या माना जाता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना जाता था। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानना एक क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया है, यानी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना जाता था, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस एनर्जी ऑफ द लाइट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये अपन डिफाइन करे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में भी। लेकिन जो हमारा प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था, उसने जब अपनी फोटोन थ्योरी दी, उसने अपना प्लैंक प्रिंसिपल दिया, क्वांटाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, तो वहां से फिजिक्स के बहुत सारे जो रूल्स थे वो चेंज हो गए, और बहुत सारी जो पुरानी अजम्पशंस थी वो भी सारी चेंज हो गई। अब वो क्या क्या चेंज हुआ वो हम अभी चैप्टर में आपको बताएंगे। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में प्लैंक का जो फोटोन प्रिंसिपल है, क्वांटम प्रिंसिपल है, उसका ही सबसे बड़ा रोल था। और प्लैंक के क्वांटम प्रिंसिपल का यूज करके इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट जाता है वो अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। तो आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था।
तो लेकिन इस इफेक्ट को जब एक्सप्लेन किया गया तब काफी क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट्स बेस्ड थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, गैलीलियो और आपके थॉमसन, रदरफोर्ड, इनको भी चैलेंज करना और इनके कंसेप्ट को रॉन्ग प्रूफ करना और अपनी नई थ्योरी एस्टेब्लिश करना, इट इज नॉट ए जोक, इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स। हम तो क्या आज पढ़ रहे हैं कि भाई प्लांक ने ये बोला, न्यूटन ने ये बोला, लेकिन प्रैक्टिकली अपन देखें तो इन सब बातों को एस्टेब्लिश करने में सालों लग जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट दिस वाज ए रिवोल्यूशनरी आइडिया एट दैट टाइम ऑफ फिजिक्स। उस टाइम की फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इसने फिजिक्स की बहुत सारी अज्यूम्शंस को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। जो लोग ये मानते थे कि भाई अब जैसे लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लोग बात सोचते थे ये सही बात है और अब इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन इस इफेक्ट में देखा गया है कि लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है, लाइट का जो वेव थ्योरी है, वो वेव थ्योरी कंप्लीटली फ्लॉप हो जाता है। यानी इस इफेक्ट को अपन लाइट की वेव थ्योरी से नहीं समझा सकते। बोलो दिव्यांश चौधरी, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। So then you have raised the hand, that's why I asked. तो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है कि ये कंप्लीटली रिवोल्यूशनरी आइडिया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जो है बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट हमारे काम के टॉपिक पे आते हैं। बाकी लेक्चर तो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको भी थोड़ा बोरियत लगने लग जाएगा, तो ज्यादा बड़ा लेक्चर भी सही नहीं है। अभी हम काम की बात पे आते हैं फटाफट से कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, और ये बातें तो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे इसने पूरी फिजिक्स को चेंज कर दिया और कैसे ये रिवोल्यूशनरी आइडिया था। ये तो हम जब आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर में, तब आपको धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता चला जाएगा कि मेरी बातों का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेटल्स के बारे में, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल के गुड कंडक्टर होने का जो रीजन होता है वो यही होता है ना कि मेटल्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए होते हैं। द मेटल्स हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स means they have very least force of the nuclei, मतलब they are the electrons of outermost orbits, outermost shell, energy levels, and on which the nuclear attraction is very very less, because you all know that electron is attracted by the attraction force of nuclei. This is the electrostatic attraction given by Coulomb's law, k q1 q2 by r square. You understood already. So that nuclear electrostatic attraction is also there on electrons. तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये ज्यादा होता है उनको अपन बोलते हैं दे आर स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट मैंने आप लोगों ने भी पढ़ा है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस न्यूक्लियाई का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है इजीली। यानी उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी दी जाए तो वो एनर्जी लेकर वो क्या कर सकते हैं, अपने अट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियाई से ही नहीं, हम उस इलेक्ट्रॉन को उससे मेटल सरफेस से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अपन ने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फोर्स से फ्री होकर उस कंडक्टर में आपका क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है। यहां पर मेरा आइडिया समझो आप, मेरा आइडिया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइडिया क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइडिया है कि अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर की सरफेस से ही बाहर आएगा। दिस इज द आइडिया ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई थिंक अब आपको पहली बात तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम चैप्टर नंबर जो 3rd था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम किस आइडिया की बात कर रहे थे और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस आइडिया की बात कर रहे हैं। वरना सबसे बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है, वो इलेक्ट्रॉन तो वहां पे ही बाहर आ गया था। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन वहां पे बाहर आ गया था अपने न्यूक्लियाई से, अपने एटम से बाहर आ गया था, लेकिन वो था कंडक्टर सरफेस के अंदर ही। कंडक्टर का जो लेटिस होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लेटिस, उसके अंदर ही वो रिवॉल्व आपका मूव कर रहा था और ड्रिफ्ट कर रहा था ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा जो आइडिया है वो उस आइडिया से कैसे डिफरेंट है। अब हमारा आइडिया है कि नाउ दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड सो मच एनर्जी दैट इट शुड कम फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही मेटल सरफेस के बाउंड्री पे आने की कोशिश करता है तो वापस मेटल से क्या करता है, मेटल की सरफेस के कारण क्या करता है, इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये मेटल के अंदर ही रहता है। तब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, हर्ट्ज, लेनार्ड, इन साइंटिस्ट लोगों ने ये आइडिया सोचा कि बोले यार इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से क्या बाहर निकाल सकते हैं, क्या इस इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी सप्लाई कर दें, ये जो लाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है,
जिसके ऊपर न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम है, कम है, क्या हम उसको इतनी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं क्या कि वो अपने अट्रैक्शन फोर्स से, मेटल के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर आ जाए? पहले ये सोचा गया आइडिया, और उसके बाद फिर इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया इन एक्सपेरिमेंट, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इट वाज पॉसिबल. It was possible to remove the electron. It was possible to emit the electron from its metal surface attraction. और इसके भी तीन तरीके खोजे गए. आपको देखो मैं पूरी बात थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ब्रीफ में कि इलेक्ट्रॉन को उसको मेटल सरफेस से निकालने के तीन तरीके बताए गए. यानी ये बताया गया कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से फ्री करना चाहते हैं तो हम ये काम तीन तरीकों से कर सकते हैं. पहला है थर्मोनिक एमिशन या थर्मल. पहला क्या है? थर्मोनिक एमिशन. थर्मोनिक एमिशन मतलब उसका टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो. तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन आपकी थर्मल एनर्जी लेंगे और थर्मल एनर्जी लेकर अपनी मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से बाहर आ जाएंगे. दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन. एक था फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन बोले तो कि उस जो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल्स. तो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो भी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना. ईवी क्यूवी पढ़ा होगा ना. अरे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल आप रहेगा आपका तो इट विल गेन द इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यू इनटू कैपिटल वी. वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेकर भी बाहर निकल सकते हैं. और तीसरा टाइप जो था दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इसमें क्या किया गया, उस मेटल सरफेस पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी का लाइट या रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला गया. लाइट इज आल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट दैट टाइम. तो उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाला गया और हमने देखा कि वो रेडिएशन जब उसके ऊपर डला तो वो इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन की एनर्जी को गेन करके अपने मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से बाहर आ गया. इलेक्ट्रॉन स्केप्ड आउट फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस अट्रैक्शन इमीडिएटली. और इस इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. और ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही हमारा इसमें डिटेल से टॉपिक है. यानी थर्मोनिक एमिशन और फील्ड इमिशन मैंने केवल आपको ऐसे बता दिया है, बट हमारा जो पूरा सिलेबस चलेगा वो क्या चलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब इसमें देखो एक बात और ध्यान रखनी है कि मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर वापस नीचे की तरफ, मेटल के अंदर की तरफ एक मेटल का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है. यानी कि यदि मैं इसके ऊपर रेडिएशन डाल के उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए सही बच्चे. 27 स्टूडेंट्स आर जॉइन ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी. अभी देखो पहले 36 35 तक आते थे, अभी देखो 7-8 बच्चे पता नहीं क्यों कम हो गए हैं. 27 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन द स्क्रीन सो फार टिल नाउ. अब इससे ज्यादा तो क्या आएंगे? ऑलरेडी 10-30 इज देयर. आने होते तो आ चुके होते जिनको आना था वो ऑलरेडी ज्वाइंड है. तो ये भी एक चिंता की विषय है कि 12th ए में पहले जहाँ 34-35 बच्चे ज्वाइन होते थे गूगल मीट क्लास में, नाउ ओनली 27 स्टूडेंट्स आर देयर. एंड दिस ट्रेंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लास्ट 6-7 days. Only 30, 31, 30, 31 out of 43. And earlier when before Diwali vacation, before midterm vacation, this number was 35, 36. Because I have a complete record of your attendance in my register. So after vacation, some 7-8 students have not joining the class. They have stopped joining the class. Maybe they may be different reasons. Some genuine problems may be there, but it is the truth that the strength is down after vacation. I don't know why, how many of you have genuine reason. Some 2-3 students have genuine reason, but maybe possible that some students do not have genuine reason. They are just not willingly, taking the class. That is not good sign actually. Because अभी देखो बाद में पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने क्या बोला कि इसके ऊपर जो रेडिएशन गिरना चाहिए उस रेडिएशन की एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि पहले वो रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को इसके मेटल सरफेस अट्रैक्शन से फ्री कर दें. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले अपन ये बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन
जो आपका रेडिएशन है, एनर्जी अपन रेडिएशन की डाल रहे हैं, उसके पास एटलीस्ट इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस अट्रैक्शन से जस्ट फ्री कर दे साहब, वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस के बाहर आ जाए, और फिर उसको हम काइनेटिक एनर्जी देके फ्लो कर देंगे सर्किट के अंदर। भाई हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन आया? इलेक्ट्रॉन को दिखता थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन को विजिबल थोड़ी है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन इज नॉट विजिबल टू अस, तो फिर हमको कैसे पता लगा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन आया होगा? ये बात आपके दिमाग में भी उठ रही होगी कि बोले सर आपने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ गया, लेकिन हमको कैसे पता लगा कि वो बाहर आ गया? हमको इलेक्ट्रॉन देख थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सही थिंकिंग है, बिल्कुल सही लॉजिक है, आपके दिमाग में यह बात आ रही है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हमको ऐसे पता लगा कि हमने क्या किया, इस मेटल सरफेस के बाद एक सर्किट बना दिया, और उस सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, और सर्किट में जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, और इलेक्ट्रिक करंट को तो हम देख सकते हैं ना, रिकॉर्ड कर सकते हैं ना हमारा गैलोमीटर एमीटर से, गैलोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं और एमीटर से वो मेजर कर सकते हैं। तो वहां पे हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया कि हमने इस मेटल सरफेस के साथ एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, और ये बोला कि जब भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा देन इट विल फ्लो इन दैट सर्किट एंड वी विल रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को मिली, वी रिकॉर्डेड द करंट। यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि देयर इज सम इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकालना कोई इतना इजी नहीं है। सबसे पहले उन रेडिएशन के पास क्या होना चाहिए, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर एक टर्म आया वर्क फंक्शन। क्या आया है? वर्क फंक्शन। वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं आपको इतनी देर से वर्क फंक्शन पे ही लाना चाह रहा था, इतनी सारी बातें मैंने इसके लिए की थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बात ध्यान रखना, minimum amount of energy of any radiation, minimum amount of energy of any radiation, ठीक है, required to remove electron from its metal surface attraction, from its metal surface attraction is called as work function। समझ में आई बात? यानी यदि हम एक रेडिएशन यहाँ पे डाल रहे हैं तो हमें पहले ये इंश्योर करना होता है कि हमारा जो रेडिएशन है उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी तो हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मेटल सरफेस का अट्रैक्शन लग रहा है उसको उस अट्रैक्शन से फ्री कर दे अपनी एनर्जी देकर। आती है बात समझ में? और इस एनर्जी का एक सिस्टमेटिक नाम बताया गया, वर्क फंक्शन। इस एनर्जी का क्या नाम बताया गया? वर्क फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब यहां पे जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन किया जाता है एच न्यू से। यही रिवोल्यूशनरी आइडिया था। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब अपन लाइट को एक क्वांटाइजेशन वाला प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, उसके हिसाब से लाइट को अपन एनर्जी पैकेट या बंडल माने। यदि हम लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के चलते हैं तब हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी आपको आगे पता लगता जाएगा, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए, कारण में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि लाइट को वेव मानकर अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा सकते, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस इफेक्ट में हमें लाइट को क्या मानना पड़ेगा, एक फोटोन, एक एनर्जी पैकेट मानना पड़ेगा। आपने पता है ना कि लाइट को हम एनर्जी पैकेट या बंडल्स के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, और स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट जो होता है, जो एक फोटोन अपन बोलते हैं, और उस फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू। एच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट अपन बोलते हैं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी कि उन रेडिएशंस के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनी, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो अपनी एनर्जी उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को देकर उसको उसके मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से फ्री कर देता है, and in this way the electron escape from its metal surface, and this phenomena is called as photoelectric effect।
इतना डिस्कशन मैं आपको देखो करके बताया। मैं आपको चाहता तो ये डेफिनेशन आते ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको पूरी एकदम मैंने सारी बातों को लिंक किया है कि पहले एनर्जी, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी, और फिर एच न्यू कहां से आया क्या है। मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो। तो नाउ you can understand the definition of photoelectric effect, because this is a new phenomena ना, तो इसकी definition भी important है। This thing you have not studied in your lower classes, that's why its definition is also important. The emission of the electrons, loosely bound electron from the metal surface attraction when the radiations of certain frequency or more than that frequency incident on any metal surface. फिर यहाँ पे एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं उन रेडिएशन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, रेडिएशन के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो मेटल सरफेस के अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को मूव फ्री कर सके। तो मिनिमम एनर्जी होगी वो कब होगी? जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अरे यहाँ पे एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू होने के लिए फ्रीक्वेंसी की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए ना। यदि अपन ये मान रहे हैं कि एनर्जी एच न्यू है, तो जिस तरह से अपन बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सक्सेसफुली अकर होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो उस मिनिमम एनर्जी के होने के लिए क्या होना चाहिए? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी is called as the threshold frequency. तो threshold frequency को हम शो करते हैं न्यू नॉट से। तो minimum frequency of the radiation, minimum radiation of the basically minimum frequency of the radiation incident, minimum frequency समझ रहे हैं ना आप? minimum frequency of the radiation incident on the metal surface which is essential for photoelectric effect. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए उसके मेटल सरफेस के पास फोटोन की क्या होनी चाहिए? मिनिमम एक कुछ एनर्जी तो होनी ही चाहिए। और दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड, मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। टू क्या व्हाट आई टोल्ड, टू ऑब्टेन दैट मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को बोला वर्क फंक्शन। So to obtain that work function, it should possess some minimum wavelength, minimum frequency, and that minimum frequency is called as threshold wavelength. It depends on what factor? It depends on nature of the metal. जो मेटल का नेचर होता है उस पर डिपेंड करती है। एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, किसी भी मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है अदर मेटल्स की या और किसी चीज की, उस इम्प्योरिटीज पे भी ये आपका कौन डिपेंड करता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या समझ में आई आप बच्चों को? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अकरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकर होने के लिए रेडिएशन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो भी इससे रिलेटेड है। इसके बाद क्या आता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। यहाँ पे क्या बोलेंगे? वी विल टॉक हियर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अब मैंने यहाँ मैक्सिमम वर्ड क्यों लगा दिया? मैक्सिमम वर्ड? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, सबको पता होगा आई थिंक। ये वाला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला 10th 11th क्लास में आ जाता है ये। न्यू इक्वल्स टू सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज न्यू। तो आप बोल रहे हैं म्यू इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ के लिए क्या लिख दोगे? मैक्सिमम हो गई नहीं होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। So when we are saying threshold frequency as the minimum frequency of radiation required for occurring the photoelectric effect, in the same way lambda will be called as the maximum wavelength. Lambda will be called as the maximum wavelength required for the photoelectric effect. Lambda क्या हो जाएगा? photoelectric effect होने के लिए maximum wavelength। समझ में आ गई बात आपको? तो this is the maximum wavelength of radiation at which the photoelectric effect occurs. I think it is clear. These are some basic terminology related to the, और कुछ बातें छोटी मोटी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन डाला,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, और उससे फिर क्या आ गया, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के आ रहा है उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव कम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी रेडिएशन के इंसिडेंट करने पर निकलते हैं मेटल सरफेस की अट्रैक्शन से फ्री होके, सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या बोला, हमको कैसे पता लगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या देना पड़ेगा, क्लोज सर्कुलर पाथ देना पड़ेगा। तो व्हेन दिस क्लोज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए क्लोज सर्कुलर पाथ एंड देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यू टू दैट एक्सक्लूसिवली फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अरे यदि इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक कंटिन्यूअस पाथ दे दिया जाए फ्लो होने के लिए, तो डेफिनेटली दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक, these photoelectrons will flow in electric current and electric current will flow due to these photoelectrons, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड एज द फोटो करंट। तो एक टर्म और यहाँ पे, दो टर्म्स आपको और सिखाई है मैंने यहाँ पे। एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द सेकंड टर्म इज फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट का डिफरेंस क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो जो निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन हैविंग द फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ है फोटो करंट। फोटो करंट मतलब द इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेवलप्ड ड्यू टू द व्हाट वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक कंटिन्यूअस पाथ में फ्लो कर दें, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक कंटिन्यूअस पाथ में फ्लो करने पर जो करंट पास होती है दैट इज कॉल्ड एज द फोटो करंट। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था। और एक आइडिया और है कि इट इज आल्सो सीन दैट कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब वो उनको डालने पे ही निकलते हैं। मतलब हमारी पीरियोडिक टेबल में ये नहीं है कि सभी तरह के मेटल एक सिंगल टाइप के रेडिएशंस के लिए ही सेंसिटिव होते हैं। different types of metals are the sensitive for the different types of the radiations. For example इसमें आपके बताया गया जैसे एल्काली अर्थ में, एल्काली मेटल्स का नाम सुना होगा आपने, एल्काली मेटल्स। तो एल्काली मेटल्स जो होता है वो विजिबल लाइट यानी लाइट रेडिएशंस के लिए सेंसिटिव होते हैं। क्या बोला मैं, एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स आप पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में एल्काली मेटल्स का नाम सुना होगा ना आपने। क्या क्या एग्जांपल है एल्काली मेटल्स के, बताओ कुछ बच्चा। एल्काली मेटल्स के क्या क्या एग्जांपल समझते हो, बताओ, नाम बताओ दो तीन के। कैन एनीबॉडी टेल सम 2-3 एग्जांपल्स ऑफ एल्काली मेटल्स? केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना एल्काली अर्थ, एल्काली अर्थ, और पहले एल्काली मेटल्स क्या क्या है? यस, सोडियम, सीजियम, यस, पोटेशियम, वेरी गुड। तो ये सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनको बोलते हैं एल्काली मेटल्स। इन एल्काली मेटल्स के ऊपर यदि अपन क्या डाले, यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस, हलीना के रब्सिस पर, अच्छा उसने पूरा फॉर्मूला बता दिया ठीक है। तो अभी इनके ऊपर जो लाइट रेडिएशन डाला जाएगा, दे आर सेंसिटिव फॉर द लाइट रेडिएशंस, ठीक है। एल्काली मेटल्स आर सेंसिटिव मींस इसमें जो मेन आता है वो आता है सीजियम। सीजियम का ज्यादा यूज करते हैं अपन, सीजियम और भी ले लेते हैं, तो बाकी सीजियम इज एल्काली मेटल। सो दीज आर द सेंसिटिव फॉर द विजिबल लाइट या लाइट रेडिएशन। यानी इनके ऊपर सोडियम हुआ आपका, सीजियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जो आप लोगों ने भी एग्जांपल लिख के भेजे उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। इनके ऊपर यदि लाइट रेडिएशन इंसिडेंट किया जाए, इनके ऊपर यदि लाइट रेडिएशन डाला जाए तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है लाइट रेडिएशन से। लेकिन देयर आर सम मेटल्स व्हिच आर सेंसिटिव फॉर द एक्स रेज, उनको बोलते हैं अल्काली अर्थ मेटल्स। तो एल्काली अर्थ मेटल्स आर रेस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव फॉर द एल्काली अर्थ मेटल्स, जो एल्काली अर्थ मेटल्स होते हैं ना। और उसके अलावा कुछ जिंक, कॉपर जैसे मेटेरियल्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव फॉर द अल्ट्रावायलेट रेज। तो डिफरेंट टाइप्स के जो मेटल्स होते हैं, दीज आर सेंसिटिव फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो उसी के हिसाब से वहां पे अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एल्काली मेटल्स जो है, जो इनके इसलिए अपन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है, द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं कभी भी इसकी डेफिनेशन में लाइट वर्ड यूज नहीं करता हूँ, कई बार इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है whenever the light incident on any light of certain frequency or more than that frequency incident on any metal surface, then the emission of photoelectrons is called photoelectric effect। मैं ये डेफिनेशन नहीं बोलता,
मैं लाइट की जगह जनरल वर्ड बोलता हूँ रेडिएशन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केवल लाइट का होना जरूरी नहीं है। जब आप इस तरह से डेफिनेशन देते हो, when the light incident on any metal surface and then the emission of the electron there, तो उससे ये सिग्नल जाता है कि लाइट के अलावा कोई और हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक ऑटोमेटिकली क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और जब मैं लाइट वर्ड हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपल रेडिएशन, when the radiations incident on any metal surface, then the basically incident on metal surface, then the emission of the photoelectrons from the metal surface is called as the what we can say फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उससे वो क्या हो जाता है, थोड़ा मोर जनरलाइज हो जाता है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें आपका आता है एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, सो 10:48 इज ऑलरेडी देयर एंड आवर वॉच इज basically giving signal to finish the class today. And student, again I am requesting, ordering, instructing whatever you understand, you think, but those students have, many students still not have submitted the midterm vacation work. I have frequently told you, you take seriously this work, sample paper and example that I gave you, and sample paper was given by principal sir. That two work you complete in your notebook and upload the scanned copy as soon as possible, because already actually it should have been submitted by 23rd, but still many students have not joined, not submitted, and today is 1 December is there already, means after opening school 8-9 days are past, vacate 8-9 days are already over, and even though many students have not submitted, student is not good thing, definitely it will be taken seriously, and then definitely you can lose your marks at certain stages. So you complete that work and you submit the work, whatever. And one practical I have also given for writing without reading calculation as you earlier. So that also you write and submit. Okay. उसका थोड़ा भी 1-2 टाइम बचा है, लेकिन वो भी आपको करना है। तो स्टूडेंट सारी बातें जो है केवल आपके बेनिफिट के लिए की जा रही है। ओनली यू आर इन द सेंटर, सेंटर में तो आप ही, हम तो केवल आपकी तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। यू आर इन द सेंटर and we are only revolving like that कि भैया कुछ सीख जाओ, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए, something you learn, something good thing you learn and you don't have so much loss, ठीक है ना। तो जब हम तो सेंटर में तो आप लोग खुद ही हैं, आप लोग यदि नहीं पढ़ेंगे तो रिवॉल्व करने वाला क्या करेगा, तो करना आपको ही है। जब आप लोग करेंगे तो फिर हमको भी लगा ओके दैट वर्क दे सिंसियरली डिड, नाउ वी कैन रिलैक्स। तो इसलिए हम जब भी रिलैक्स होते हैं जब आप काम सबमिट कर देते हैं, काम प्रॉपर्ली करते हैं, अदरवाइज हमारे दिमाग में चलता रहता है यार इतने बच्चों ने काम नहीं किया, इनके क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, दैट्स सो मेनी थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्चुअली आज मैंने थोड़ा जानबूझ के शॉर्ट पढ़ाया, कम पढ़ाया, ठीक है ना। देन वी विल स्पीड अप दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क, सबमिट द वर्क। दोज हु हैव कंप्लीटेड दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। जिन्होंने 23rd के पहले ही सब वर्क कंप्लीट कर दिया, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिकॉज and they will be benefited in some way, ठीक है ना, in terms of marks or in terms of Thank you, sir. yeah. And those who have not submitted, they should submit it. Thank you very much student. Okay, और ये क्लास डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले।